شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا اس پروگرام کے لیے۔ ناظرین، ایک بدبختی بدقسمتی پر مبنی آج کا پروگرام ہے اور میں چاہوں گا کہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ کسی کرائم کو گلوریفائی کیا جائے، لیکن میں وہیں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام آج ہر ماں اور ہر باپ ضرور دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو اذیت عام ہوئی ہے اور ایک کے بعد دوسرے کی جان، دوسرے کے بعد تیسرے کی جان خطرے میں، یہ سب چیزیں گھر کی چار دیواری سے شروع ہوئی ہیں۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی شادی، کوئی بھی خانہ آبادی کرنے سے پہلے اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ لڑکا اور لڑکی ان کو اس فیصلے میں ضرور شامل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو چونکہ یہ رشتہ تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت ضرور لی تھی۔ لیکن ہم آج کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، جو ابے نے فیصلہ کر دیا بس وہ ہوگا، جو گھر والوں نے کر دیا بس وہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس لڑکے نے، اس کا نام عثمان ہے، اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا تاکہ وہ کشمالہ سے شادی کر سکے۔ پھر کشمالہ نے اپنے خامند کو قتل کیا عثمان کے ساتھ مل کے تاکہ کشمالہ عثمان سے شادی کر سکے۔ پھر ان دونوں کی فیملیز دوبارہ نہیں مانی اور انہوں نے قتل اتنے صاف ستھرے طریقے سے کیا تھا کہ یا یہ دونوں جانتے تھے یا اللہ جانتا تھا کہ یہ دونوں قاتل ہیں۔ باقی تمام معاشرے، خاندان، قبیلے نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ قدرتی اموات ہیں، عثمان کی بیوی کی بھی، کشمالہ کے سابق شوہر کی بھی، قدرتی اموات سمجھ کے معاملہ آگے چل گیا۔ ان دونوں نے دوبارہ اپنی فیملیز کو اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب تو ہماری شادی کر دو، وہ بیوہ ہو گئی، میری بیوی مر گئی، اب ہماری شادی کر دو۔ لیکن ان دونوں کی شادی دوبارہ نہیں ہوئی، کہانی نہیں ختم ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کشمالہ کے خامند کو مارنے کے لیے، دوسرے خامند کو مارنے کے لیے عثمان اور کشمالہ پھر پلاننگ کرتے ہیں کہ مری لے جا کر کیسے قتل کرنا ہے۔ یہ درد بھری کہانی، میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کو شرمندہ کروں، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ تمام معاملہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہماری ایک کوتاہی، ایک نالائکی ہمیں کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ ہوا یہ شرمناک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ عثمان۔ عثمان، یہ کون ہے؟ کشمالہ۔ کیا لگتی ہے؟ دوست ہے۔ دوست ہے؟ جی۔ کیسے؟ پیار کرتا ہوں اس سے۔ کتنے عرصے سے؟ 2017 سے۔ 2017، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 6 سال۔ جی۔ اس کے درمیان کیا کیا ہوا؟ بلکہ ایک منٹ رکو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون ہے؟ عثمان۔ کیا لگتا ہے؟ بھائی ہے، خامند ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، مامے کا بیٹا ہے، چاچے کا بیٹا ہے، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں لگتے۔ آپ کہہ رہے ہیں دوست ہیں؟ جی۔ دوست ہیں یا کچھ نہیں لگتے؟ میرے حساب سے تو دوست ہی ہیں۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حساب سے دوست ہیں، آپ کے حساب سے کیا ہے؟ پسند ہے یہ۔ پسند ہے؟ جی۔ اپنے خامند کو خود قتل کیا تھا؟ جی۔ کس کے ساتھ مل کے؟ عثمان کے ساتھ۔ عثمان کے ساتھ مل کے۔ آپ نے اپنی بیوی کو خود قتل کیا تھا؟ جی۔ کس کے ساتھ مل کے؟ اکیلے۔ کس کے کہنے پہ؟ کسی کے بھی نہیں۔ خواہش کیا تھی اس کو قتل کرنے کی؟ شادی کی۔ ہیں؟ شادی کی۔ وہ لڑتی تھی؟ نہیں۔ بدتمیزی کرتی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جھگڑا کرتی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ ماں باپ کو برا بھلا کہتی تھی؟ نہیں۔ کیا کرتی تھی؟ چاچا کی بیٹی تھی؟ جی۔ کیا کرتی تھی وہ جو اس کو مارنا پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ماریا کیوں ہے؟ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ تو اس سے شادی کرنے کے لیے اس کو مارنا ضروری تھا؟ نہیں۔ اگر گزارا نہیں ہوتا تھا تو اس کو فارغ کر سکتے تھے۔
عثمان صاحب جی آپ سے عرض گزار رہا ہوں, جی جی اس سے شادی کرنے کے لیے اس کو فارغ کر سکتے تھے. کیسے مارا تھا اپنی بیوی کو؟ نیند کی گولیاں دے کے تکیے کے ساتھ سانس بند کیا. ہے؟ نیند کی گولیاں دے کے تکیے کے ساتھ سانس بند کیا تھا. پھر اس کے بعد واش روم میں لے جا کے سر پہ چوٹ لگائی تھی, وہ دروازہ بند کر کے دوسری طرف سے باہر آ گیا تھا. نہیں, پوری بات بتاؤ. پوری بتا رہا ہوں. اس بچی کو جو تمہارے چاچا کی بیٹی تھی, جو تم سے پیار کرتی تھی, ایسے ہی ہے؟ جی جو تمہاری ایک تابع دار بیوی تھی, جی ایک بدبخت آدمی کی تابع دار بیوی تھی, اس کو نیند کی گولیاں دی. جی نیند کی گولیاں دے کر اس کے چہرے پر, اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کیا. جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی اس کے بعد اس کو برہنہ کیا. جی برہنہ کر کے اس کو باتھ روم میں لے جا کر پھینکا, اس کو شیمپو اور صابن لگایا, ایسے ہی ہے؟ جی اس کے بعد شاور چلایا, جی اس کے میلے اور نئے کپڑے اندر لٹکائے, جی اس کے بعد فرار ہو گئے جی دروازہ بند کر کے, جی. تاکہ ایسا لگے جیسے وہ خود گر کے مری گئی. جی ایسا ہی ہوا؟ ایسا ہی ہے. تو جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ نہیں. پھر شادی کے کتنے عرصے بعد یہ کیا تھا؟ 2 ماہ بعد. امیجن کریں, شادی کے 2 مہینے بعد اپنی ایک تابع دار ترین بیوی کو مار دیا کہ میں نے ایک بدبخت لڑکی سے شادی کرنی ہے جو اپنے خامد کو مارنے کے لیے تیار ہے. ادھر بھی آتا ہوں, اور اس خاتون نے بھی اپنے ایک محبت کرنے والے, نرم دل رکھنے والے خامد کو قتل کیا اس کے ساتھ مل کے, کیونکہ وہ بھی ایک بدبخت آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی. ایسا ہی ہے؟ جی. خامد سے کوئی جھگڑا؟ نہیں. کیا نام تھا اس کا؟ شرافت. ہے؟ شرافت. کیا لگتا تھا؟ تائے کا بیٹا تھا. تائیدہ منڈا. تائیدہ منڈا خامد قتل کیا, چاچے دی تھی بیوی قتل کی. کیوں مارنا پڑا تھا؟ مارتا ہوگا, نہیں. تشدد کرتا ہوگا, نہیں. کھانا نہیں دیتا ہوگا, نہیں. کپڑے نہیں لے کے دیتا ہوگا. لے کے دیتا تھا. لے کے دیتا تھا. ماں باپ سے نہیں ملنے دیتا ہوگا. ملنے دیتا تھا. تو کیوں مارے ہی؟ پسند نہیں تھا. پسند نہیں تھا؟ جی. کیا پسند نہیں تھا؟ شادی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ نہیں. شادی بھی مرضی سے کی ہے؟ جی. شادی مرضی سے کی تھی؟ جی. تو پھر پسند کیسے نہیں تھا؟ آپ نے اپنے ماں باپ کو عثمان کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں. ہاں, یہ اب منافقت نکلے گی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عثمان, آپ نے اپنے ماں باپ کو بتایا تھا کہ آپ اس خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جی. کب؟ شادی سے پہلے. پہلی بیوی کو قتل کرنے کے بعد یا اپنی شادی سے پہلے؟ شادی سے پہلے. پھر کیا ہوا؟ نہیں تھے مانے. نہیں تھے مانے. تو جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس نے تو اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی تھی. اس نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تمہارا تذکرہ اپنے ماں باپ کے پاس کریں. ادھر دیکھو, اوپر دیکھو, میری طرف دیکھو. جرم کیا, اس کی سزا قانون دے گا. میری طرف دیکھیں, آسانی سے. کچھ نہیں ہوا. جی. جو کرنا تھا بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ آپ نے کیا ہے. اس بی بی نے تو آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات بھی کرے کہ میں عثمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو اپنی بیوی پار کر آتے. آپ کے کہنے پر اس نے اپنے خامد کو مارا؟ دونوں کا مشورہ تھا. مشورہ کیسے ہوا تھا؟ یہ میں ادھر سے پوچھتا ہوں. مشورہ کیسے ہوا تھا اپنے آپ کے خامد کو مارنے کا؟ اس نے کہا تھا؟ اس نے کہا اس کو چھوڑ دو. میں نے کہا گھر والوں, اس نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو, گھر والوں نے نہیں تھا ماننا. پھر اس نے کہا مار دیتے ہیں. مارا کیسے تھا؟ اس کو پہلے نیند کی ٹیبلٹ دی ہیں. ٹیبلٹس کہاں سے آئی تھی نیند کی؟ اس نے لا کے دی تھی. نے لے آ کے دیتی ہیں سن. جی. جنہیں آپ دی بیوی شادی تو 2 مہینے بعد قتل کی تھی کہ تیرنا بیاہ کر سکے بی بی. ایویں ہی ہے نا؟ جی. تمہیں یہ عقل نہیں آئی کہ جو بندہ اپنی ایک محبوب محبت کرنے والی بیوی کو قتل کر رہا ہے, میں اسی جگہ پر جانا چاہ رہی ہوں جہاں پر وہ بندہ خناس کا مارا اپنی بیوی کو مارا, اور اب میں اس کی بیوی بننا چاہ رہی ہوں. عقل میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا میری وجہ سے مارا, مجھ سے شادی کرنے کے لیے. پھر اس نیند کی ٹیبلٹ میں نے دی ہیں اپنے شوہر کو. ہاں. پھر اس کے منہ پہ شوپر چڑھایا ہے, تکیے سے سانس بند کیا ہے اس کا. پھر اس نے کہا پانی لے کے آؤ. پانی لے کے آئی ہوں تو اس نے اس میں گوتے دیے اور پھر اس کو باہر لے جا کے پھینک دیا. باہر لے جا کر حویلی میں
लिटा कर चादर जूता शूता बांध दिया जी ताकि ऐसा लगे कि ये हवेली में हार्ट अटैक से मर गया। जी फिर वही हुआ, फैमिलीज ने समझा कि हार्ट अटैक से मर गया, कोई बात नहीं। जी ऐसा ही है। हाँ जी। यानी दोनों ने इसने अपनी बीवी को, इसने अपने खामद को सिर्फ इस चक्कर में मारा, और बड़ी कामयाबी के साथ मारा नाज़रीन, कि किसी को पता भी ना चले, और वाकई किसी को नहीं पता चला। सब लोग यही समझते रहे कि कुदरत की तरफ से आई थी, नसीब माड़े सन। ले ले स्वाद आ रहा है मजाब। नहीं, अब क्या होगा आगे? सजा होगी। हो जाएगी शादी थोड़ी दोवां दी? सजा होगी। दूसरी शादी आपकी कैसे हुई थी? आपने जब अपने खामंद को कत्ल कर दिया इस तुरम खान से शादी के लिए, तो फिर इस तुरम खान से शादी क्यों नहीं की? इसके घर वाले फिर नहीं थे माने। आपने अपने घर बात की थी? जी। किससे की थी बात? मामा से। मामा ने क्या कहा था? कि इसके घर वाले रिश्ता भेज देंगे तो कर दूंगी। फिर इसके घर वाले नहीं माने। इसके घर से कोई रिश्ता नहीं लेकर आया? नहीं। आपने अपने घर बात की थी? जी की थी। क्या कहा उन्होंने? नहीं थे माने। कौन नहीं माना था? घर वाले। घर वालों में कौन था? बाप नहीं माना, माँ नहीं मानी, कौन नहीं माना? सारे नहीं थे माने। क्या कहते थे? ये नहीं करना। तुम्हारे घर वाले इस बीबी को जानते थे? जी। किस तरीके से जानते थे? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पसंद नहीं करते थे? पता नहीं। क्या वजह भी कोई बताई होगी ना? नहीं, कोई नहीं बताई। कोई बरादरी का मसला था? नहीं। फिर क्या किया? एक ही दफा बात की? नहीं, हाँ? काफी दफा की थी। फिर नतीजा क्या निकला कि नहीं माने? जी। तुम्हारी शादी कहाँ हुई? अपनी साली के साथ? जी। उसी की बहन को तुमने कत्ल किया? जी। हाँ जी। ऐसा घर, ऐसा खानदान कि उन्होंने अपनी एक बेटी कत्ल होने के बाद दूसरी बेटी दे दी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि किस दरिंदे को उन्होंने पहली बेटी दी थी। ऐसे ही है? जी। कितना अरसा रही शादी दूसरी? 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। अब बीवी को पता चला कि मेरी बहन को भी इस दरिंदे ने कत्ल किया था? जी। दूसरी बीवी से ताल्लुकात ठीक थे? जी। हाँ। आपकी शादी किससे हुई दूसरी? रिश्ते वाले ने करवाया था। किससे करवाई थी? कौन था वो बंदा? बाहर का था। बाहर का था? कौन था? वाकफियत थी? नहीं। पसंद करता था आपको? पता नहीं। है? पता नहीं। शादी के बाद ही पता लगना सी ना, कि पहले लग जाना सी? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜਾ ਖਾਮਨ? नहीं। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? जी। ਕਪੜਾ ਲੱਤਾ? जी। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? उसको नहीं था माना। उसको एक माह बाद छोड़ के आगे 1 महीना भी नहीं उसके साथ रही। हाँ, मरी जाकर पहाड़ से धक्का देने का क्या प्लान था? अल्लाह, नहीं था देना। मैंने उसको तलाक ले लेनी थी उससे। इसको तुमने भेज दिया पिंडी ताकि ये पिंडी पहुंचे, मैं उसको हनीमून के बहाने उसके साथ मरी जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों भाई? जी। पिंडी ऐसे क्या लेने गए थे? ऐसे ही था। ऐसे ही था ना? जी। वो तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्लान था बताओ? यही कि मरी मिल जाके पहाड़ वगैरह से धक्का दे। मरी मिल जाके पहाड़ वगैरह से धक्का दे देंगे। तुम भी वहां पे होगे उस टाइम? जी। जब उसको पहाड़ से धक्का देना है सेल्फी के बहाने, तो तुम भी वहां होगे? जी। इसीलिए तुम यहाँ से अगवा हो गए जाली तौर पर? जी। कहाँ गए थे अगवा के? पेशावर। पेशावर। पेशावर से कहाँ गए? पेशावर से वापस आ गया था। पेशावर से जाना इसने बुलाया वापस? जी। क्योंकि पुलिस इस तक पहुंच गई थी। जी। यानी अगर पुलिस इस तक ना पहुंचती तो दूजा बंदा भी टपा देता सी। जी। दूजा साइन भी। जी। शर्म नहीं आती है? हेलो, आती है। आपसे बात करूं, शर्म नहीं आ रही? आती है। वो कह रही है ऐसा प्लान ही कोई नहीं था। झूठ बोल रही है ना? पता नहीं। जहाँ वो कह रही होगी, अगर वो कह रही है कि प्लान था तो सच बोल रही है, नहीं तो झूठ बोल रही है। सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। वो कहता है आप झूठ बोल रही हैं। दूसरे खामद को मारने का क्या प्लान था? जो इसने बताया वही था? नहीं। क्या प्लान था? चलो कोई नया प्लान है तो वो बता दो, क्या था? नया प्लान नहीं है कि अगर नहीं छोड़ेगा तो मार देंगे। मैंने कहा मैं नहीं मार सकती, बार बार सबको नहीं मारना, तो उससे तलाक ले लूंगी और फिर तलाक लेके गायब हो जाएंगे। तलाक पहले तो ले जा सकती सी, पहले खामद तो बजाय उन्हें मारन दे। जी। जे इन्नी आखिर आई हुई सी तो तलाक ले जा सकती सी ना? जी। जब मारने का प्लान बना, ये कितने दिन पहले खामद को मारने का प्लान चलता रहा? इसकी बीवी के बाद है? इसकी बीवी के बाद कितना? 15 दिन चला, 10 दिन चला? मारने में कितना वक्त लगा? 3 माह।
3 महीने तुम लोगों के ज़हन में ये चलता रहा कि इसको मारना कैसे है, जी। उसी के घर खाती भी रही, उसी के तमाम मामलात इंजॉय भी करती रही, और 3 महीने उसको मारने की तैयारी में भी रही। ऐसी भी चाहिए थी तुम्हें, नहीं, जो जिस थाली में खा रही है, जिस कश्ती में बैठी है, उसमें छेद कर रही है। हाँ, नहीं, एंदे पीछे सोनी मारी यही जी। वर्ल्ड कप ले लो, लब रहे ना वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। ये जो बंदा चाहिए सी, जी, ये चाहिए, हाँ जी। जेड़ा आपकी 2 बीवियां मार चुके हैं, और एक मार चुके हैं, दूजी दे चक्कर च है। मेरे लिए ही मार रहा है। औरत बदबख्त होना, यकीन कीजिएगा एक बात मैं यहाँ खड़ा होके कह रहा हूं, वो किसी भी कबीले, किसी भी खानदान को बर्बाद कर सकती, किसी भी माशरे में आग लगा सकती। वो खातून अभी भी कह रही है कि ठीक था, वो मेरे लिए मार रहा था। उसको ये लग रहा है, विद अपोलॉजी, अगर किसी को बुरा लगे कि वो कोई हूर परी है, जैसी हूर परी दुनिया में कोई और नाजिल नहीं हुई है। क्यों हुजूर, ऐसा ही है। अब इसमें माँ बाप की गलती क्या है कि अगर एक बच्चा इतना ही आप उधरा हो गया है और वो हर मामले को समझता है कि जनाब फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसको या तो तरबियत में मसला आ गया था, या शादी एटलीस्ट पूछ के कर देनी थी। नहीं तो ऐसी बदबख्ती कर सकती है कोई भी, ऐसा बदबख्त भी निकल सकता है। अली भाई जी सर, तो बड़े पक्के हैं और खुश हैं जी। कि हमने मारे में बंदे, जी जी नतीजा भी मारने लग गया था जी। वो बीबी कह रही है कि वो बड़ा ठीक था, और मैं हाँ कि सर अभी तक इनको सजा नहीं ना हुई, अभी इनकी प्रॉपर इंटेरोगेशन होगी, उसके बाद जब इनको अदालत में पेश किया जाएगा, अभी इनको सजा होगी ना। अभी इनका वो जो है रोमांस पीरियड चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो इनकी इंटेरोगेशन हो रही है। जब इनको सजा होगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनको महसूस होगा कि हमने क्या गुनाह किया है। हाँ, जब किसी भी जुर्म की सजा नहीं ना नाज़रीन मिलती, तो इंसान अपने आप को तुरम खां समझने लगता है। वही समझता है कि शायद मैं बड़ा महान और कमाल हूं। ये बदबख्ती है, ये अजियत है। अभी भी इसी से शादी करनी है? बचेंगे तो करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह बचेंगे ही नहीं, अल्लाह के फजल से। सो दिस इज द सिचुएशन जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये खौफनाक और शर्मिंदगी से भरा वाक़या जो आपके सामने रखा है, जिसमें मोहब्बत के चक्कर में पहले एक लड़की ने अपने खामंद को कत्ल किया, दूसरी जानिब लड़के ने अपनी बीवी को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद ये शादी करना चाहते थे, शादी नहीं कर सके, दोनों की और जगह शादी हो गई, और उसके बाद बदबख्ती यहाँ तक आई कि एक और जान जाने लगी थी। लेकिन फॉर्चुनेटली पुलिस ने इस केस को अनर्थ कर लिया और लड़की तक पहुँच गए, और उसके बाद ये कहानी जो है वो एक मुख्तलिफ पहलू के तौर पर सामने आई है। बिनी अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन से इनका ताल्लुक है, और ही इज़ द पर्सन जिनकी टीम ने इस केस को अनर्थ किया। अस्सलाम वालेकुम बिनी अमीन। वालेकुम। से ठीक है। ये मामला पीछे से 2 कत्ल का मामला चलता आ रहा था। एक में लड़के ने अपनी बीवी को कत्ल किया, दूसरे में लड़का लड़की मिलकर लड़की के खामद को कत्ल करते हैं। अब एक तीसरा कत्ल करने जा रहे थे। 3-4 दिन का अगर गैप पड़ जाता तो एक और जान चली जानी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल स्टोरी पता क्या है? असल स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। असल स्टोरी ये थी कि ये लड़का चूँकि काफ़ी देर से इस लड़की को चाहता था, आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। फिर यहाँ पे अलग-अलग ये फिर इनकी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जब इसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया, उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया। उस्मान ने अपनी बीवी को मार दिया और खातून ने अपना खावंद का मर्डर करवा दिया। उसके बाद इसने उस्मान ने अपने वालिद को कहा जी अब मेरा रिश्ता उससे करवा दे, मेरी शादी उससे करवा दे। लेकिन लड़की कहती है उसने तो अपने घर बात ही नहीं की थी। नहीं, ये इनकी बातें हैं ना जो हम कह रहे हैं, हम तो इन्वेस्टिगेशन की बातें कर रहे हैं ना। लड़के ने कहा अपने वालिद को कि मेरी शादी अब कश्माला से करवा दें। उसके घर वाली एग्री नहीं हुई, यानी कि सबसे पहले भी उसने ये स्टार्ट में भी कहा था कि मेरी शादी इससे करवा दें, उस वक्त भी एग्री नहीं हुए। दूसरी मरतबा फिर उसने मर्डर करने के बाद कहा, फिर भी वो एग्री ना हो गए। उसके बाद फिर उसने अपनी गेम शुरू कर दी। लड़की की शादी एक बैंक वाले बंदे से होगी, वहाँ पे जाके इसने क्वार्टर वगैरह ले लिया किराए पे, ये पड़ोस में रहने लग पड़ा। उसके बाद जाहिर बात है इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग चलती रही। वो बैंक वाला बंदा ये अपनी बीवी के साथ नहीं रहता था, ये वहाँ पर इस औरत ये इसके घर में ये कह दिया कि मुझे कोई जॉब मिल गई है, तो मैं अब उधर ही रहता हूँ, 24 आवर उधर काम करता हूँ, उधर ही रहता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जॉब वगैरह कोई नहीं थी। ये वैसे ही इसने उधर एक फ्लैट ले लिया, उधर अकेला रहता था। इससे इसका मिलना जुलना था, आपको पता ही है जैसे माशरे में काम चलते हैं।
उसके बाद ये बैंक वाला जो बंदा है वो बेचारा सुबह जॉब पे जाता था, शाम को आता था, उसने कहा जो पीछे बीवी गुलछरे उड़ा रही होती। मेरी बीवी है, चलो मैं अपना इसको लेके हनीमून कहीं छुट्टियाँ मिली फिर जाऊँगा। वो इससे प्लानिंग करता था, ये आगे उसको बात घर की बताती सारी। फिर इसने ये प्लान, किडनैप वाला प्लान इसने खुद ही तैयार किया कि मैं अगवा होता हूँ, मेरी FIR हो जाएगी, फिर मैं पेशावर से मरी आ जाऊँगा, मरी चले जाना। जब हम मरी चले जाएंगे तो पीक पहाड़ी पे जाके मैं इसको धक्का दूंगा, इसका मर्डर कर देंगे, इसका मर्डर करने के बाद फिर हम बाकी शादी कर लेंगे। हालांकि ये मसला है नहीं है, ये कानून इस मुल्क में है, अगर चाहते तो कर सकते थे, अलग हो जाते यार, जेल खुला ले लेते, मुंह काला कराने के 2 लिए। मर्डर करके तीसरे की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि वो बंदा बच गया तीसरा, अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, उसका मुकद्दर दुनिया में था अभी। बड़ी बदबख्ती का मामला है। हम जा कहाँ रहे हैं, इसकी बुनियाद जो है वो कहाँ से आपको लगता है कि माँ बाप को शायद ताउन कर लेना चाहिए? नहीं, इस तरह नहीं। असल में माँ बाप तो मजलूम है, जिनको पता ही नहीं है ना इसके पेरेंट्स को पता क्या की है, क्योंकि जो इसकी बीवी थी वो इसकी सकी चाचा की बेटी थी और उसका खामन ताई का बेटा था। ताई का बेटा। ये दोनों बड़े क्लोज थे आपस में और दोनों के बता रहे कि उनकी, उसका खामन बहुत अच्छा था, उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनकी नज़र में अच्छी नहीं ना। लेकिन ये भूत है, इसका भूत, इसका भूत ही, लेकिन फैमिली वाइज बहुत बहुत अच्छी फैमिली है सारी। हमने उनको सारा वर्कआउट किया, उधर जाके बहुत अच्छे लोग हैं, इस तरह के नहीं है, शरीफ फैमिली है। खैर जी, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। नाज़रीन, बदबख्ती किसी के दरवाजे पर आकर पड़ाव कर ना बैठ जाए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहरहाल ये इसका भूत था जो सर चढ़कर बोल रहा है, और इनफैक्ट अभी तक बोल रहा है। मैंने इसको, इनसे मेरी डिस्कशन हुई, मैंने देखा। लेकिन आप देखें, लड़की का घर तबाह, लड़के का घर तबाह, दोनों की जहाँ शादियाँ हुई थी वो भी तबाह, फिर दूसरी जो शादियाँ हुई थी वो भी तबाह, और उसके बाद अभी इस अंजाम तक पहुंच गए। तो तकरीबन 7 के करीब ख़ानदान जो हैं वो इन 2 लोगों की मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद हो गए, और मोहब्बत भी वो जो हवस से शुरू हुई थी अपनी शादियों से पहले और ज़माने तालिब इल्मी से चली आ रही थी, और बदबख्ती आम करी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये बदबख्ती पर मबनी वाक़यात होते हैं जो हमें आपके सामने रखने पड़ते हैं, और इन तमाम तर वाक़यात को आपके सामने रखने का एक बुनियादी मकसद होता है कि जिन जिन वजूहात की बुनियाद पर ये जराइम कमिट हो रहे होते हैं और ये जुल्म आम हो रहा होता है, हमें उनकी नाकाबंदी करनी चाहिए। हमें बहैसियत मुआशरा, बहैसियत एक ख़ानदान, कबीला, हमें इनका रास्ता रोकना चाहिए। और अपने बच्चों के हवाले से, अपने अजीज़ो कारिब के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पर जो हम माशरे से देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उनको ये कहीं पर भी ये जराइम हो सकते हैं। तो जो वाक़या आज आपके सामने रख रहे हैं, पिछले 2 ब्रेक्स में आपने देखा कि हमने एक हैरान कुन किस्म का मामला, लड़की की शादी होती है वो अपने खामन को मार देती है, लड़के की शादी होती है वो अपनी बीवी की जान ले लेता है। मकसद क्या है, दोनों मिल जाएं, और इवेंचुअली वो फिर नहीं मिल रहे होते, फिर एक तीसरे जुर्म की तैयारी हो रही होती है। सो इस वक्त हमारे साथ DSP CIA मियां अंजुम तौकीर साहब मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये केस कैसे अनर्थ हुआ, क्योंकि 2 मर्डर्स पहले हो चुके हुए थे और अब कहानी CIA के पास आती है। कहानी का बैकग्राउंडर क्या है? मेरे साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। क्या मामला था, कैसे हुए ये मर्डर्स, कहां कहां पर हुए, CIA के पास केस कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस्मान और कशमाइला एक लड़की लड़का है, एक गांव के रहने वाले हैं, कस्बा छोटा सा जिसमें रहते हैं। एक एकेडमी में दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, वहाँ से फारिग हुए, दोनों की अलग-अलग शादी हो गई। दोनों ने कोशिश की कि शादी हो जाए, किसी वजह से नहीं हो सकी। ये एक दूसरे को पसंद करते थे, अंडरस्टैंडिंग थी, राब्ते में थे। जब दोनों की शादी हो जाती है अलग-अलग, लेकिन ये राब्ता नहीं छोड़ते, मिलते रहते हैं। उसके बाद उस्मान जो है वो अपनी बीवी को वॉशरूम में साबुन लगा के, पानी चला के, और उसका पहले सांस रोकता है, फिर उसको मार के वॉशरूम में फेंक देता है और दीवार फलांग के बाहर आ जाता है, ताकि ऐसा तासुर मिले कि वो अंदर किसी वजह से जी मर गई। तो उसके वालिदैन जो है नीचे ऊपर वाले पोर्शन पे वो खुद रहते हैं, था नीचे वाले पोर्शन पे उसकी वालदा है। आधा पौना घंटा उस लड़की का इंतज़ार करते हैं, फिर वालदा उसकी ऊपर जाती है, सारे ऊपर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, वॉशरूम से पानी चल रहा होता है, शावर चल रहा होता है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। 10 मिनट के बाद
2-4 लोग मिल के उसको तोड़ते हैं दरवाजे को, तो वो बरहना हालत में पड़ी होती है, ऊपर से शावर चल रहा होता है, उसके जिस्म पे सर पे शैम्पू साबुन लगा होता है। जब ये सूरत हाल देखते हैं तो उनको ये समझ आती है कि उसका पाँव फिसला है नहाते हुए, सर में चोट लगी और वो वहीं मर गया। और उसको एक कुदरती अमर समझ जी, कि कुदरती हादसा समझ के उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई जाती, ना उस पर कोई किसी को इन्वॉल्व किया जाता है, किसी कानूनी इदारे को। उसके बाद दोबारा 2 माह के बाद वो लड़का उस लड़की को कहता है, कुशमैला को, कि मैंने तो अपनी बीवी रास्ते से हटा दी, अब तुम्हारी बारी, तुम भी इसको करो। वो कहती है ठीक है। लड़का उसको मेडिसिन ला के देता है, नींद की गोलियां। वो अपने खामंद को और घर में मौजूद तमाम लोगों को, ससुर वगैरह सबको वो मेडिसिन दे देती है। अच्छा जी, खाने में मिला के? चाय में। चाय। वो सब लोग रात को 11-12 बजे सो जाते हैं। वो इंतज़ार करती है, जब 2:30-3 बजते हैं तो लड़के को मैसेज करती है, वो आ जाता है। दोनों मिलते हैं। उस वक्त उसके कमरे में शराफत नामी कशमैला का शौहर है, वो सोया होता है। दोनों मिलते हैं, उसकी टांगें बांधते हैं, उसके हाथ बांधते हैं। वो बेहोशी में? बेहोशी। ठीक है। फिर उसके सर के ऊपर एक शॉपर चढ़ाते हैं और उसके बाद तकिए के साथ उसका सांस रोकते हैं और उसको मारते हैं। पानी मंगवा के, एक पानी का बर्तन मंगवा के उसमें उसका सर डुबो के चेक करते हैं कि सांस तो नहीं ले रहा। उसके बाद दोनों उसको उठाते हैं, उठा के और उसके घर से कोई 4-5 घर दूर, 50 गज कह लें या 100 गज के करीब, उसकी एक हवेली होती है लड़के की, जहाँ पे उसने भैंसें रखी होती हैं, बाड़ा है। वो सुबह जाता है, वहाँ से उनका दूध दोता है, बेचता है, जो भी करता है। मेहनत का आदमी था वो। उस बाड़े में जाके उसको उसकी गर्म शॉल उसके ऊपर दे देते हैं। उसके बाद उसका मोबाइल, उसके जूती, उसके पर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे छोड़ देते हैं। सुबह को 5 बजे के करीब कोई शख्स गुजरता है या वहाँ पे आता है तो वो देखता है, उसको घर वालों को इतला देता है कि ये गिरा हुआ है। वो उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहाँ से पता चलता है कि ये ठंडा मर चुका है। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि या तो इसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, इसके दिमाग की कोई नस फट गई। अच्छा। या शायद हार्ट अटैक हो गया। ठीक है। क्योंकि ज़ाहरी तौर पे उसके चेहरे पे या जिस्म पे किसी किस्म का कोई निशान नहीं होता और उस वाक़े को भी रिपोर्ट नहीं किया जाता। और वो भी इसको कुदरत का अमर समझ के कि ये बस हादसा हो गया और इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, जी इसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद दोबारा ये कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी फिर शादी नहीं, जी शादी नहीं होती। उसमें शायद लड़के के बाप की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। शादी नहीं होती और वो उसकी शादी लड़की की जो है वो एक साहब वो डिफेंस के पास रहते हैं, उनसे कर देते हैं। ठीक है, यानी दोनों ने अपने, एक ने मियाँ को मारा, एक ने बीवी को मारा, लेकिन फिर भी ना मिले और शादी फिर आगे होगी। फिर उसके बाद लड़का जो है वो अपनी साली के साथ शादी कर लेता है। ठीक है। दोनों के दोबारा घर बस जाते हैं और उसके बावजूद दोनों फिर राब्ते में रहते हैं। क्राइम पार्टनर्स हैं और फिर राब्ते में। ठीक है। उसके बाद ये लड़का जो है उस लड़की जिस कॉलोनी में रह रही होती है वहाँ पे एक कमरा किराए पे लेता है और रेगुलर उससे राब्ता करता है और मिलने जाता है। हालांकि वो इसके घर से कोई 30 किलोमीटर दूर, यानी एक कॉमन प्लेस पर दोनों इकट्ठे होते हैं? नहीं, उसके घर मिलने जाता है। उसके घर मिलने जाता है। ठीक है। और उसके घर के करीब एक कमरा किराए पे ले लेता है। इनकी राब्ते और मुलाकात रहती है और फिर ये प्लान करते हैं कि अब इसको किस तरह रास्ते से हटाया जाए। ओह। खामन को, दूसरे खामन को। यानी इस दफा आप लड़की के खामन को पहले मारा? पहले लड़के ने अपनी बीवी को पहले मारा। लड़की कहती है कि मेरे मियाँ ने मुझे ये कहा था कि हम दोनों चलते हैं मरी सैर करने, जिस तरह शादी के बाद नॉर्मली लोग मरी वगैरह जाते हैं। शादी के लिए वो जाना चाह रहा है सैर करने के लिए, तो लड़का कहता है ठीक है, मैं 4-5 दिन पहले लाहौर से चला जाता हूँ,
میرے گھر والے FIR کروائیں گے یا مجھے ڈھونڈیں گے میں غائب ہوں یا میں گم گیا ہوں یا میں اغوا ہو گیا. میں فون بند کر لوں گا, لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں اغوا ہو گیا ہوں. اس کے کچھ دن بعد تم اپنے میاں کو لے کے مری آ جانا, میں آلریڈی وہاں پہ ہی ہوں گا. جب تم وہاں پہنچو گی تو ہم اس کو کسی پہاڑی کے اوپر پہاڑی دکھاتے تھے. اچھا, وہ یہ پلان کرتے ہیں اور لڑکا واقعی اپنے گھر سے غائب ہو جاتا ہے. جب وہ غائب ہوتا ہے تو نیکسٹ ڈے اس سے 4-5 دن کے بعد لڑکی نے اور اس کے میاں نے مری جانا ہوتا ہے. لڑکا غائب ہوتا ہے, اس کی FIR درج ہو جاتی ہے قلعہ گجر سنگھ تھانے میں. جی, وہ بتاتا ہے کہ میں ذرا جا رہا ہوں, میں نے لیپ ٹاپ لینا ہے. تو وہ قلعہ گجر سنگھ کا علاقہ بنتا ہے, وہاں پہ اس کی FIR درج ہو جاتی ہے. جب FIR درج ہو جاتی ہے تو اس پہ پولیس کام شروع کر دیتی ہے. اس پہ ہماری CIA پولیس بھی اغوا کا میٹر ہوتا ہے, کام شروع کر دیتی ہے. جب اس کی کال ڈیٹیل نکلتی ہے تو اس لڑکے کا ایک نمبر پہ بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے, اور وہ اس لڑکی کا. جب اس نمبر کو جب آپ ٹریس کرتے ہیں ہم, تو وہ اس لڑکی کا نمبر آتا ہے اور اس لڑکے کی وہاں کی لوکیشنز بھی آتی ہیں. جب اس لڑکی کا اور اس کا جب گاؤں سے پتہ کیا جاتا ہے تھوڑا سا, تو پتہ چلتا ہے یہ لڑکی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ ہماری ٹیمیں جا کے پتہ کرتی ہیں. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی دوسری شادی ہے, اور پہلی شادی اس کی اسی لڑکے کے ساتھ ہے جو گم ہو گیا. پہلی انڈرسٹینڈنگ اس کی اس لڑکے کے ساتھ ہے جو گم ہو گیا. اور اس کا پہلا شوہر جو ہے لڑکی کا وہ مر گیا تھا, اور وہ جو لڑکا ہے جو گم ہوا ہے اس کی بھی ایک بیوی جو ہے وہ بھی اتفاقیہ طور پہ مر گئی. یہ چیزیں تھوڑی سی ڈاؤٹ فل سی لگتی ہیں ان میں. فوراً اس پہ کام شروع کر دیا جاتا ہے. اس کی ثبوت وغیرہ آہستہ آہستہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے. لیکن پکڑنے سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا ہے. مری جا چکے تھے یا نہیں پہنچے؟ جی نہیں, جب یہ لڑکا چلا جاتا ہے, لڑکا پنڈی تک چلا جاتا ہے, وہیں رکا رہتا ہے. جب پولیس جا کے اس کو ٹچ کرتی ہے لڑکی کو, تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم واپس آ جاؤ, یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا. پولیس والوں نے تو ابھی تمہارے جاتے ہی مجھے ڈیٹیکٹ کر لیا یا روپ کر لیا ہے, مجھ تک پہنچ گئے ہیں, اور میں اگر چلی گئی تو پھر تو کنفرم ہو جائے گا. تو وہ لڑکا جو ہے وہ پھر واپس آتا ہے کہ لڑکی کو, کیونکہ جب واپس آتا ہے تو وہ متعلقہ پولیس کے پاس جا کے اس کو کہتا ہے کہ جی مجھے میرا اس لڑکی کے ساتھ تعلق تھا, اور اس لڑکی کو میں ملنے گیا اور اس کے میاں نے مجھے پکڑ لیا, ساتھ اس کے 2 بندے تھے, انہوں نے مجھے مارا ہے, میرے سر میں کوئی چیز ماری, میں بے ہوش ہو گیا ہوں, اور مجھے ایک ٹرک میں ڈال دیا انہوں نے, اور ٹرک میں ڈال کے یہ مجھے لے گئے ہیں. جب مجھے ہوش آئی ہے تو میں پشاور میں کہیں پہ تھا, اور وہاں سے پھر میں جان چھڑا کے بھاگ کے یہاں آ گیا. اچھا, اب یہ سٹوری اس میں تھوڑی سی جان بھی ہے. جب اس طرح کی ہم سٹوری سنتے ہیں تو ہمیں جب اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی لوکیشن آ رہی, ہو سکتا ہے یہ سٹوری سچی ہو. لیکن جب اس کے مزید کام کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سٹوری جھوٹی ہے. ہم اس لڑکے سے پوچھتے ہیں, جب وہ مانتا ہے پشاور کی کوئی لوکیشن تو اس کی نہیں ہے. نہیں, فون ہی نہیں تھا نا اس کا, فون تو اس نے بند کر دیا. تو جب یہ پنڈی گیا تھا تو اس بیوی کا رابطہ اس کے ساتھ, یہ وہاں سے لوکل نمبر سے اس کو فون کرتا تھا. ہاں, اپنے نمبر سے نہیں کرتا تھا, وہاں سے کسی لوکل نمبر سے اس کو فون کر لیتا. اچھا, اس کو پھر بعد میں جب ہم نے پکڑ لیا دونوں کو, پھر ان سے پوچھا, پھر یہ قتل کلیئر ہوئے, تو اس سے پوچھا کہ بھئی اس لڑکے کا نام, اس کے دوسرے شوہر کا نام تم نے کیوں لیا, اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا, یا اس پہ کیس. اس نے کہا جی وہ مری تو گیا نہیں میرے ساتھ یا بیوی کے ساتھ, اور وہ پلان کامیاب نہیں ہوا. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ میں نے کہا کہ بلکہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس کا نام لے دیتا ہوں, اس کیس میں, اغوا کے کیس میں اس کو اندر کروا دیتا ہوں, تو یہ اندر چلا جائے گا, تب پھر بھی ہمارا راستہ ٹھیک ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا. اس لیے میں نے اس کو اس طرح, یعنی ایک کے بعد ایک پلندہ جو ہے, پہلے 2 جو مرڈر ہیں وہ ان کو ہضم ہو گئے ہوئے تھے ایکچولی, اور اس کے بعد پھر وہ ان کو لگا کہ ہر چیز ہضم ہوتی جائے گی, ڈائجسٹ ہوتی جائے گی, اور ایونچولی کہانی یہاں تک پہنچی. اگر یہ شخص ٹریس نہ ہوتا یا پولیس اس لڑکی تک نہ پہنچتی تو تیسرا مرڈر ہو گیا. جی انڈرسٹوڈ. 3-4 دن میں وہ
अगले 2-3 दिन में हो जाना था। इस मर्ज में ये जो खन्नास हमारी यंग जनरेशन के दिमाग में चल रहा है कि हम समझते हैं कि हम कुदरत का मुकाबला कर लेंगे और हर वक्त हम इस जहद में लगे रहते हैं कि हमें अपने निजी गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं, उसमें शर्म लिहाज कानून किसी खाते में हम इन चीज़ों को नहीं लिखते। इसमें असल बीमारी क्या है, कहाँ क्या देख रहे हैं कि ये क्यों हुआ ये सब? देखिए, मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बात होती रही है, हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग मज़हब से दूर हैं, हम अपने मज़हब को छोड़ चुके हैं, या शायद हमें हमारे मौलवी साहबान ने मज़हब सिखाया ही नहीं है, हमें शायद सिखाने की कोशिश ही नहीं की गई, और उसी तरह हमने अपने बच्चों को भी अपने मज़हब का जो पॉजिटिव रुख है वो दिखाया ही नहीं है। तो हमारे मज़हब में तो ये दोस्ती ताल्लुक लड़की लड़के की किसी किस्म की कोई इजाज़त ही नहीं, गुंजाइश नहीं, लेकिन हमारे कानून में है। कानून में। अच्छा, दूसरा मैंने बताया कि तरबियत वाली बात वो मैं पहले भी करता हूँ। अगर माँ और बाप दोनों बच्चों के, दोनों लड़की लड़कों के जिस वक्त ये एक दूसरे को पसंद कर रहे थे उस वक्त बच्चों की मर्जी से शादी कर देते तो शायद ये बखेड़ा इतनी जाने ना ले रहा होता। वो जो मैंने या फिर भी कोई ऐसे जी मैं बताता हूँ, वो मैंने बात की ना मज़हब की, तो हमारे मज़हब में तो ये कहा गया है कि आप शादी से पहले लड़की और लड़के की मर्जी राय ज़रूर ले लें। हमारे मज़हब में तो इसकी इजाज़त है कि आप शादी करने से पहले उनसे पूछें, और उनकी मर्जी हो तो करें, अदरवाइज ना करें। तो बदकिस्मती कह लें। और थैंक यू वेरी मच मियां साहब, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। नाज़रीन, हम पुलिस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन इतनी घुमनघेरियां और इतनी घुंडियां होती हैं किसी भी मामले में, और इन सब का आगाज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे घर की चार दीवारी में से हो रहा होता है। कहीं ना कहीं घर की चार दीवारी में बुनियादी हकूक सल्ब हुए होते हैं। इट इज एक्चुअली अ बेसिक ह्यूमन राइट कि यार एक लड़की एक लड़का जहां शादी करना चाह रहे हैं, शरअ भी यही कहती है, आप उनको मौका दें कि वो वहां पर ही अपना जो है ताल्लुक और अपनी जिंदगी को लेकर आगे चले। लेकिन जब हम अजीजो कारिब की सूरत में, पीयर प्रेशर की सूरत में, या फिर अपनी जरूरियात की मोहताजी की सूरत में चीजों का रुख बदलने की और रिश्तों को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन माने एक ऐसा भूचाल आता है, एक ऐसी अजियत आती है, एक ऐसा टॉर्नाडो क्रिएट होता है जो पूरे सिस्टम को उजाड़ देता है और अपने घेरे में लेकर बर्बादी तक पहुंचा देता है। यकीनन ये एक शर्मनाक चेहरा है हमारे माशरे का, जिसको अब इस्लाह करने की जरूरत है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।